कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे इन काफका में। तो एक और चीज है, पहले हम लोग कंसोल में सब कुछ कर रहे थे, प्रोड्यूसर क्रिएट करना, कंज्यूमर को यूज करना प्रोड्यूसर। बट रियल टाइम सिनेरियो में आपका यहाँ पे आपको एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। जनरली आपको अगर पेड कोर्स देंगे तो आपको जावा का एप्लीकेशन क्रिएट किया जाएगा, बट आई फील लाइक दैट्स नॉट जस्टिफिकेबल. Why? Because if we are learning everything in Scala and later on, like if at last like we are using something or other in Java, so most of the people might not be aware of like how to write code in Java, so it's going to be very difficult for them. That's the reason what I'm going to do, I'm going to stay in Scala only because we are covering in Scala. That's the reason we will be covering this topic as well in Scala. You can create this consumer or producer, these kind of things using Scala or C sharp, anything like that, seriously, or Java, whatever you feel like. In Python also you can create it, but I'm going to show you in Scala how you can do that. So let's talk about first of all what is consumer group in Kafka. So what's a consumer group? Consumer group in a Kafka is a collection of consumers that cooperate to consume messages from topics. It's a powerful concept that enables कुछ feature मिलता है मुझे. Parallel processing. First of all, it gives parallel processing, load balancing और fault tolerance. पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, मतलब पैरेलली काम कर सकते हैं. मल्टीपल कंज्यूमर विद इन द ग्रुप कैन साइमल्टेनियसली कंज्यूम मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्टीशन ऑफ अ टॉपिक, effectively parallelizing the processing and increasing the throughput. Load balancing. Kafka automatically distributes partitions across consumers in the group, ensuring each consumer receives an approximately equal share of workload. एक और चीज है, जो मैसेज एक कंज्यूमर रीड कर रहा है वो मैसेज दूसरा वाला नहीं रीड करेगा, वो कुछ और मैसेज रीड करेगा. दिस प्रिवेंट्स एनी सिंगल कंज्यूमर्स फ्रॉम बिकमिंग ओवरलोड. फॉल्ट टॉलरेंस. If a consumer in the group crashes or leaves, other consumers in the group will automatically rebalance the partition, ensuring no messages are lost. ये चीज है. बाय द पिक्चर क्वालिटी कैसे आ रही है आपको कमेंट कर सकते हो. फेस की बाय द वे मैं हॉर्न 90 फोन से भी रिकॉर्ड कर सकता है, उसमें ज्यादा अच्छी आएगी, बट चलेंगे इसी से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. Here is a breakdown of key एक्सपर्ट्स कितने की एक्सपर्ट्स हैं इसमें कंज्यूमर ग्रुप में, तो बारे में थोड़ा जानते हैं. क्रिएटिंग अ कंज्यूमर ग्रुप. Consumer join a group by specifying a unique group ID when starting the consumer. All the consumers in the same group belong to the same group. Sorry, all the consumers in the same group ID belong to the same group. A group can have any number of consumers. Consumer periodically send heartbeat messages to the group coordinator to confirm their liveness. A group coordinator क्या करता है? कंज्यूमर कोऑर्डिनेटर जो होता है, ग्रुप कोऑर्डिनेटर टैग्स द मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप एंड असाइन पार्टीशन टू ईच ग्रुप. ठीक है, सॉरी, ईच कंज्यूमर, नॉट ग्रुप. अ स्पेशल कंज्यूमर कॉल्ड द ग्रुप कोऑर्डिनेटर इज इलेक्टेड विद इन द ग्रुप. ठीक है, इलेक्शन होता है उसके पीछे. कमिटिंग ऑफसेट्स अभी क्या है? Each consumer tags its position within a partition by storing an offset. When a consumer finishes processing a message, it commits its offset to Kafka. This ensures that other consumers in the group won't reconsume the messages that have already been processed. ये मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है ना, मतलब वही है rebalancing. When a consumer joins, leaves or crashes, the remaining consumers rebalance the partition. Each consumer takes ownership of a new set of partitions to maintain an even workload distribution. Benefits of using consumer groups: increase throughput and scalability. Scalability होगी कि एक ही बंदा काम नहीं करेगा, बाकी लोग, बहुत सारे लोग एक साथ काम करेंगे. ठीक है, काम डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से हो जाएगा. इंप्रूव फॉल्ट टॉलरेंस एंड डेटा रिलायबिलिटी. एफिशिएंट वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन है, बताया ना मैंने अभी. सिंप्लीफाइड कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन, ये चीज होती है. यूज केसेस क्या है? रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉग एग्रीगेशन एंड लॉग, कोई भी एप्लीकेशन है आपका, वेब एप्लीकेशन, उसमें लॉग्स होता है, वो सब चीजें आप सेंड करने के लिए काफी इस्तेमाल कर सकते हैं. स्ट्रीम प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, मतलब आप कोई गेम खेल रहे हैं, गेम वाला तो लॉग्स में आ गया. ठीक है, आप कोई भी स्ट्रीमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है आपका, कोई भी चीज ऐसा काइंड ऑफ स्टफ. ठीक है, आपका कुछ एक्टिविटी ट्रैकर, आप ट्रैक कर रहे हैं, एड ट्रैक कर रहे हैं, ऐसे कुछ, कितने लोग तो आपके वेबसाइट पे आ रहा है उसको ट्रैक कर रहे हैं. दैट काइंड ऑफ स्टफ आल्सो कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग काफका. काफका का यूज केस है, मतलब यूज केस ये कंज्यूमर ग्रुप का. माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. अब माइक्रो सर्विसेज क्या होता है? ASP.NET कोर ने भी एक माइक्रो सर्विस बनाया है. अब माइक्रो सर्विस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, सीरीज अलग से आएगी, उसमें कुछ आपको कमेंट करना पड़ेगा क्या चीज बनाऊं माइक्रो सर्विस में. होता क्या है, अब रियल टाइम मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन में क्या होता है, ASP.NET की बात कर रहा हूँ, ASP.NET कोर की बात कर रहा हूँ. मेरे पास एक लेयर होगा, ठीक है, इट कैन बी अ वेब एपीआई लेयर और इट कैन बी अ
नॉर्मल एमवीसी लेयर। दूसरा लेयर्स क्या होंगे हमारे, सर्विस लेयर होगा, एक जिसमें सर्विसेज बनाऊंगा मैं, क्लास लाइब्रेरी होगी वो। और तीसरा जो होगा ना वो हमारा डेटा वाला होगा, वो भी हमारा क्लास लाइब्रेरी होगी। और चौथा हमारा एंटिटीज होगी, जिसमें हम लोग डेटाबेस के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दें, कौन क्या टेबल नाम होगा, दैट काइंड ऑफ क्लासेस वी क्रिएट, दैट इज आल्सो बी अ क्लास लाइब्रेरी। ये नॉर्मल सिनेरियो होता है जो स्टैंडर्ड लोग फॉलो करते हैं, जैसे हम लोग फॉलो करते हैं, तो वो होगा। चौथा एक शेयर्ड वाला भी हो सकता है, शेयर्ड काइंड ऑफ स्टफ, उसमें भी आप क्लास लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोलर, जैसे मेरे पास डिफरेंट पेजेस है, जैसे मेरे पास कैटेगरी का एक पेज है और मेरे पास प्रोडक्ट का पेज है, तो उसके लिए मैं अलग अलग कंट्रोलर बना रहा हूँ। कंट्रोलर कहाँ पे होगा, एपीआई लेयर के अंदर, या फिर वेब लेयर जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एमवीसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेब लेयर में, एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं तो एपीआई लेयर में। बट माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स का अलग से एक एप्लीकेशन बनाएंगे, हाँ, कैटेगरी का अलग से एक एप्लीकेशन बनेगा, अलग से एक एपीआई एप्लीकेशन बनेगा। Instead of creating controller in that one single API layer, we will be getting different API layer for different हमारे different tables, different tables बना दे, कैटेगरी एक टेबल है, प्रोडक्ट एक टेबल है, अलग अलग बना रहे हैं। तो क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है हमारा, तो मैं डिप्लॉय करने में आसानी होगी, मैं छोटा छोटा चंक ऑफ कोड इस्तेमाल, मैंने प्रोडक्ट में कुछ चेंज किया तो प्रोडक्ट वाला मैं एपीआई लेयर को वो करूंगा, मैग्नेट करूंगा, दैट काइंड ऑफ स्टफ। इस तरह से बहुत सारी चीजें, ठीक है, ये सब चीजें होंगी, उसमें अलग अलग होगा, एपीआई लेयर डिफरेंट हो जाएंगे, तो डिफरेंट मेरे ख्याल से सर्विसेज बहुत सारे डिफिकल्ट हो जाएंगे, अलग सर्विसेज करके भी, सर्विसेज एक लेयर नहीं बनेगा, अलग सर्विसेज बनेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं अगर सर्विस की अलग से एक सीरीज बनाऊंगा तो वो इस टॉपिक में नहीं है, मतलब जिस ये अभी जो कर रहे हैं उसमें अभी उससे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। जानिए कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है। अब एक बनाते हैं, बनाने की क्या क्या जरूरत पड़ेगी मुझे, एक मैं तो एक जो पर रन करना पड़ेगा, बताया कैसे रन करते हैं, काफका रन करना पड़ेगा, मुझे एक प्रोड्यूसर बनाना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पे जो कंज्यूमर वाला एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है, आने वाले सेशन में प्रोड्यूसर वाला भी एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं प्रोड्यूसर अलग तो बना दे रहा हूँ, टॉपिक भी अलग से बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये चीजें मैं कर दे रहा हूँ कंसोल से, बट अलग से एक एप्लीकेशन का सबसे बेहतर रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, फिर मैं सारी चीजों को रन करूंगा। अभी कंसोल बंसोल कुछ रन नहीं किया, ठीक है, तो अभी कोड लिख देते हैं, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी मुझे। यार मेरा फोन में इसमें आर्टनेस एंड एप्स डाउनलोड किस तरह से हो गई, आई डोंट नो। बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड हो गए यार, सारे अनइंस्टॉल करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बिल्ड वाले में जाऊंगा, मैं यहाँ पे एक ब्रेव ओपन कर लेता हूँ। ब्रेव ब्राउजर में क्या करेंगे, अभी हमको मार्विन वाले में जाना पड़ेगा। तो मैं अगर अपाचे काफका सर्च करोगे ना, तो मैं यहाँ पे अपाचे काफका सर्च करना पड़ेगा मुझे, मैं काफका सर्च करूंगा, अपाचे काफका। क्लाइंट्स वाले में जाऊंगा ना, यहाँ पे इसमें मेरे पास बहुत सारे वर्जन है, सबसे लेटेस्ट वर्जन है 3.6.0, तो मैं इसको पे क्लिक करूंगा। एसवीटी में जाना है मेरे को, उस पर क्लिक करूंगा तो कॉपी टू क्लिकबोर्ड हो जाएगा। फिर मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा इस वाले फाइल में, यहाँ पे बिल्ड वाले पाथ में, ठीक है। तो लेट मी क्लिक, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा बिल्डर एसपीडी। तो मेन वाले स्काला में जाऊंगा तो मेरे यहाँ पे एक ये बटन आ रहा होगा, लोड एसपीडी चेंजेस, तो ये चेंजेस को लोड होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसपीडी चेंजेस लोड होता रहेगा। अब जो कुछ इंपोर्ट करना है मेरे को, जावा की चीजें कुछ इंपोर्ट करना है, जावा के टाइम तो वो दिखाता हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट टाइम डॉट ड्यूरेशन। वैसे जावा का शॉर्ट्स वाली सीरीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बट आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ जावा का कुछ बड़ा वाला सीरीज लाएंगे, बट वो अभी नहीं आएगा। अभी इस वाले सीरीज के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द रिएक्ट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द ASP.NET Core Razor Pages, and I am going to continue this Angular and Python. These whatever series that I have not completed it, I will be first completing that. Then I am going to focus on other series. Java little dot properties है, import Java dot little dot collection, import Java org dot Apache dot Kafka, Kafka का डाल दिया मैंने, clients dot consumer, इसमें consumer config, साथ में यहाँ पे कंज्यूमर, ये दो चीज मैंने इंपोर्ट कर दी यहाँ पे। उसके पहले एक और चीज इंपोर्ट करना भूल गया था, मैं तो इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट काला डॉट कलेक्शंस डॉट जावा कनेक्टर्स डॉट, सबको इंपोर्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट मेन बना के कर रहा हूँ, आप एक्सटेंड बना के भी कर सकते हो, बट एक्सटेंड वाला थोड़ा काम नहीं करता अभी आजकल, तो मैं मेन बना के कर रहा हूँ। एक्सटेंड कभी काम करता कभी काम नहीं करता, तो मैं बेसिकली मेन प्रीफर करता हूँ। आपका ब्रोकर प्रॉपर्टीज में डाल दूंगा यहाँ पे, ये तो थोड़ी चीज डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं वाल जॉब्स करूंगा एक न्यू प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज डालूंगा, की वैल्यू सब कुछ, मेरा कंज्यूमर आईडी वाईडी सब कुछ डालना है। तो जॉब्स
डॉट पुट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, सॉरी पुट ऑल नहीं होगा, का इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर कॉन्फ़िग डॉट, यार सजेशन यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले बूटस्ट्रैप सर्वर कॉन्फ़िग, तो बूटस्ट्रैप सर्वर कॉन्फ़िग है वो डालना है। इसके बाद मुझे कौन से पोर्ट में रन करना है, तो बेसिकली यार आप पता होगा मैंने लोकल होस्ट में लिख रहा हूँ 9092 पोर्ट, दिस वाज द पोर्ट दैट वी वर यूजिंग, सो दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग नेहर ओनली। मैंने एक फाइल में मेंशन करके रखा है जो आपको पता ही होगा, बाय डिफॉल्ट यही पोर्ट होता है। करूंगा कंज्यूमर कॉन्फ़िग डॉट ग्रुप आईडी कॉन्फ़िग, यहाँ पे एक कंज्यूमर ग्रुप का नाम रखो, जैसे फॉर एग्जांपल माय कंज्यूमर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। ऑप्स डॉट पुट का इस्तेमाल करेंगे कंज्यूमर कॉन्फ़िग डॉट डिसराइजर टास्क कॉन्फ़िग, यहाँ पे की का मेंशन करेंगे org डॉट अपाचे डॉट काफका डॉट कॉमन सीरियलाइजेशन डॉट स्ट्रिंग डीसीरियलाइजेशन। इस तरह से मैं वैल्यू सीरियलाइजर भी कर दूंगा। मैं यहाँ पे की सीरियलाइजर डाल दिया और उसके साथ साथ मैंने वैल्यू सीरियलाइजर भी डाल दिया। वैल्यू सीरियलाइजर में कॉमन सीरियलाइजेशन डॉट स्ट्रिंग डीसीरियलाइजर, ठीक है। एक होता है की होता है, एक होता है वैल्यू होता है, दोनों पे खेलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट पे आता हूँ। क्रिएट काफका कंज्यूमर क्रिएट करना पड़ेगा अभी मुझे, प्रोड्यूसर में क्रिएट करूंगा कंसोल से, तो मैं काफका कंज्यूमर यहाँ से क्रिएट कर दे रहा हूँ। वाल कंज्यूमर क्रिएट करेंगे, कंज्यूमर नाम रख दो, न्यू काफका कंज्यूमर डाल दूंगा मैं। इसको मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ, कॉमा स्ट्रिंग डाल देता हूँ। एक मिनट को इसको यहाँ पे करते हैं ताकि आपको दिखे। यार टाइप ही नहीं हो रहा है, क्लिक ही नहीं हो रहा है। स्ट्रिंग कर देता हूँ, दो चीजें स्ट्रिंग कर दी, को प्रॉप्स कर दिया। सब्सक्राइब टू टॉपिक करना पड़ेगा, ठीक है। सब्सक्राइब टू काफका टॉपिक, ये काफका टॉपिक आपका बना होना चाहिए, तो मैं बनाना दिखा दिया था मैंने पिछले वाले वीडियोस में, वो भी फिर से दिखा देता हूँ मैं। इसीलिए बोल रहा हूँ अगर पिछले वाले वीडियोस नहीं देख के आए हो तो भाई देख के आओ। सब्सक्राइब करूंगा कलेक्शंस डॉट सिंगलटन लिस्ट, इसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे मैं टॉपिक का नाम, जैसे मेरे पास टॉपिक का नाम टीपी टॉपिक, सीरियसली कुछ भी डाल दो यार, जो टॉपिक आपका नहीं है वो डालना है, जो टॉपिक है आपका वो डालना है। क्या करूंगा पोल फॉर न्यू मैसेजेस में न्यू मैसेज, यहाँ पे कुछ भी आप अब जो भी आपका लॉजिक लिखना चाहते हैं वो लिखना पड़ेगा आपको। मैं फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एक कुछ लॉजिक लिख देता हूँ, जैसे वाइल ट्रू। मैं काफका कौन सा वर्जन मैं यहाँ पे काफका लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट काला कौन सा इस्तेमाल करना कमेंट कर। कंज्यूमर डॉट फुल ड्यूरेशन डॉट ऑफ माइल्स रिकॉर्ड्स डॉट एस काला डॉट फॉर ईच का इस्तेमाल करूंगा। रिकॉर्ड्स प्रिंट रिसीट मैसेज कर दिया मैंने, डॉलर रिकॉर्ड डॉट वैल्यू पार्टीशन होगा, रिकॉर्ड डॉट पार्टीशन ऑफसेट लिखूंगा यहाँ पे, रिकॉर्ड डॉट ऑफसेट, वाइल यार बंद होगा। अब मुझे क्लोज कंज्यूमर वेंडर, ये डालते हैं कंज्यूमर डॉट क्लोज। ये हमारा मैंने एप्लीकेशन बना दिया कंज्यूम करने के लिए। Now let's create start everything and create a topic and producer सब कुछ create कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा मैं, let me open the my terminals, बहुत सारा टर्मिनल, let me first open the terminals, तो let me open this, यहाँ पे जाऊंगा काफका में, I feel that is there in the UI पर, यहाँ पे ये है जेटके सर्वर डॉट sh रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन टर्मिनल। हाँ फाइल का नाम क्या है, जेट के सर्वर डॉट sh, तो यहाँ पे ओके ओके स्लैश बिन डाल रखा, मैं बिन फोल्डर में ऑलरेडी हूँ तो मैं यहाँ पे बिन नहीं डालूंगा, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरा डूगी पर स्टार्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव टू स्टार्ट द काफका, तो काफका में जाऊंगा, ठीक है। मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन टर्मिनल करूंगा, ओके काफका यहाँ पे जाएंगे। देखो काफका वाला ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है कोड, तो मैं लेट मी सी व्हाट इज द कोड। ये देखो बिन के अंदर सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पे हम लोगों ने इसको कॉपी करके अलग अलग बनाया था। वो वाला वीडियो नहीं दिखा है तो वो चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने अलग बताया था मल्टी क्लस्टर किस तरह से बनाते हैं, मल्टी नोड। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, ये काफका को स्टार्ट कर देता हूँ। आई वुड रिकमेंड यू टू इंस्टॉल द काफका लेटेस्ट वर्जन। किस तरह से कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने बताया आपको, हमारे चैनल पे वीडियो मिल गया होगा। अब मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल एक और करता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा और फिर मैं उसको टॉपिक को यूज कर सकता हूँ अपना, फिर मैं उसको प्रोड्यूसर भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट मी क्लिक ऑन दिस यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं टॉपिक बाय डिफॉल्ट ये होता है यहाँ पे, ये मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। लेट मी कॉपी दिस सीरियसली एंड गो डाउन and paste it somewhere else because I want to change it a bit. Let me change a bit. So what I'm going to do, मीट टॉपिक मेरा नाम नहीं है, हमारा केस में सीपी टॉपिक है, तो सीपी टॉपिक ले लेते हैं, ओके। और लेट मी गिव द पार्टीशन एज 3, क्या मैं पार्टीशन को 3 डाल देता हूँ, अपने हिसाब से डालो, सारा पार्टीशन डाल रहा हूँ, सीपी टॉपिक डाल रहा हूँ
कंज्यूमर कर रहा हूँ, अलग अलग कंज्यूमर है इसलिए। तो मैं इसको यहाँ पे इसको एक टॉपिक क्रिएट कर लेता हूँ। उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, लेट मी शो यू द क्या क्या टॉपिक है अवेलेबल है मेरे पास। नहीं डाला मैंने टॉपिक किस तरह से विजिट करते हैं। ओके रहने देते हैं, टॉपिक वो मैंने ऑलरेडी बताया कर रखा है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आई होप मुझे बताइए ये टॉपिक मैंने बनाया नहीं था। राइट क्लिक एंड पेस्ट इट एंड रन इट। टॉपिक मेरा टॉपिक क्रिएट हो गया। अब मुझे प्रोड्यूस करना है तो लेट मी प्रोड्यूस डू अ प्रोड्यूसर एज वेल। तो मैं प्रोड्यूसर में जाऊंगा, यहाँ कंसोल प्रोड्यूसर। यहाँ पे टॉपिक का नाम हमारा भी टॉपिक होगा, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और लेट मी यहाँ पे रन हो गया था। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरा टॉपिक यहाँ पे क्रिएट हो, यहाँ पे होगा ना, तो मैं फटाक से क्या कर देता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक एप्लीकेशन रन कर देता हूँ। यहाँ पे यार एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। ठीक है, अभी कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले तो एक यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मे आई कमेंट मैडम हैज केम, मे आई कम इन मैडम। सीरियसली मैं अभी यही देख रहा हूँ मैडम। ठीक है, ऐसे कुछ लिखते हैं यार सीरियसली। मैं इसको एंटर मारता हूँ। आई होप यहाँ पे डेटा आना चाहिए, रिसीव वन पर्सन मैडम। मैं रन करता हूँ, ओपन टर्मिनल करता हूँ फिर से। ठीक है, लेट मी ओपन वन मोर टर्मिनल। मैं ऊपर जाऊँ, हमारा कंज्यूमर ग्रुप का नाम क्या है, माय कंज्यूमर ग्रुप, कंसोल कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे। थोड़ा सा आपको एक और चीज दिखाता हूँ मैं फटाक से। हाँ, टॉपिक का नाम हमारा सीपी टॉपिक है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सीपी टॉपिक कर फ्रॉम बिगनिंग। इसके बाद मैं एक और चीज रखूंगा, माइनस माइनस ग्रुप, और फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये जो है ना माय कंज्यूमर ग्रुप। लेट मी कॉपी दिस। आई फील लाइक ये मैं कर सही कर रहा हूँ मेरे ख्याल से। मैं सही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना पड़ेगा। मैंने ग्रुप डाला, माय कंज्यूमर ग्रुप। लेट मी रन दिस एज वेल। आई होप इट माइट नॉट हैव एनी इश्यू। लेट मी रन। ओके, ये चीज हो गई। ओके, यहाँ पे ओके, लेमन जूस। ठीक है, मैंने लेमन जूस डाल दिया। लेट मी सी किसके अंदर आया। ठीक है, इसमें आया। क्या इसमें आया? इसमें नहीं आया। अब मैं एक और मैसेज टाइप करता हूँ, लेट मी टाइप। उसमें आया, इसमें नहीं आया। ओके, मीट सॉसम कुछ टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, लेट मी चेक कर रहा हूँ कहाँ पे आया। इसमें नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आया। यहाँ पे ही तो आया, यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे आया। तो जो मैसेज इसमें आएगा वो उसमें नहीं आएगा, और उस पे जो आएगा वो उस पे नहीं आएगा। तो आप मल्टीपल मैसेज आ रहा है। अभी मैंने एक एक कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा यहाँ पे ये यही मैसेज आ रहा है। मैं फटाफट टाइप करूँ, मी तयूरी रामू काका। ठीक है, मैंने 3-4 मैसेज टाइप किया, आप देखते किसमें आया। इसी में आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा है। ठीक है, वही ले जा रहा है। अब ठीक है, मैं एक कर रहा हूँ, हो सकता है इसलिए नहीं आ रहा होगा। बट ओनली थिंग है, एक मैसेज जिसमें आ रहा है वो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो एक चीज है, मतलब मैंने इस वाले कंज्यूमर को बंद कर दिया। ठीक है, क्लोज दिस कंज्यूमर। लेट मी टाइप वन मोर थिंग सीरियसली। अब मैं कर दूं सीरियसली, मीट इज बैक, समथिंग लाइक दैट सीरियसली। देखो कौन सा कंज्यूमर में आएगा। अब इसमें आया। ठीक है, तो ये भी चीज होती है, कभी ये कंज्यूमर बंद हो गया, दूसरा कंज्यूमर काम करेगा। ठीक है, ये चीजें थी। कंज्यूमर ग्रुप हमारा जान लिया हम लोगों ने, कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है और किस तरह से मैं कंज्यूमर्स को ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट कंज्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ जान लिया इस वाले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर नहीं सब्सक्राइब किएंगे। इस तरह के चैनल आपको मिलेंगे नहीं, और आपको फ्री में भी नहीं मिलेगा। फ्री में भी नहीं मिलेगा, आपको पैसे देना पड़ेंगे हर चीज का। इस तरह के वीडियोस के लिए आपको लगभग मान के चलो 1.5 लाख के आसपास सिर्फ डाटा इंजीनियरिंग का। एंड क्लाउड तो कवर ही नहीं करेंगे, क्लाउड का और भी 1 लाख रुपए होता है। तो गाइस समझ रहे हो ना, क्लाउड का अलग, इसका अलग, डीएसए भी अलग से चार्ज, डीएसए भी 40-50 हजार। वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज हम कमाने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए बैठे हैं। तो ये चीज है। डीएसए की सीरीज फीस रिज्यूम होगी, बहुत कुछ कर रहे हैं डीएसए में, अलग अलग कंपनी वाइज फिल्टर भी कर रहे हैं कंपनी वाइज। और अगले वीडियो में मिलता हूँ। हो वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका भी सीरीज फ्री में यहीं पे मिल रही है और कहीं भी मिल रही है। डाटा इंजीनियरिंग की सीरीज यहाँ पे भी फ्री मिल रही है, कोई बना नहीं रहा है, सब पैसे ले रहे हैं, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं।